I hope you guys do really well. So thank you everybody. It was wonderful being here I'm extremely happy and full of gratitude to be here, and we'll keep it more conversational. Would not like to repeat the resource list and strategy, because there are a lot of things that you can refer online, and I've been caught up with a lot of interactions here and there where I've been saying the same things. So I like to talk to you and understand what you guys are going through, because 5 days back I was at that side of the table and I can completely relate to everything that you might have been going. I would like to be more empathetic and would like to share anything that might help you and might make this preparation journey easier, which is extremely hectic and full of every negative thing around us. So just a bit of a background so that you get a context. I come from a place called Talcher in Odisha, and all my schooling, everything till 12th was done there. After that, I had joined NIT Rourkela, where I did my BTech in Computer Science and Engineering, and I graduated in 2021. And after that, in October 2021, I have been posted in Indian Oil. I was selected through campus, and I work as Information Systems Officer at Indian Oil, and I'm still working with Indian Oil as well. And I have been a full-time aspirant, and this was my first attempt, and sociology was my optional. So this is a bit of a background from my side. I had not done any classroom coaching from any institute, be it online or offline, but I had been part of a lot of mentorship and test series programs as well. I've used multiple free resources, online and offline. So I had been a rocky ride here and there in the journey, but today I'm extremely happy that I'm here and I'm being able to share my happiness with you. So we can start. If you have any questions, then I'll be more than happy to answer. If you have any doubts regarding the strategy or any particular subject or any other side of the preparation journey, then I would be able to explain my side of story to that as well. Yeah. जैसे कि फिर हम लोग जो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि वो हमारे कॉन्फिडेंस को फिर बिल्ड करने में बहुत काम आता है, ये बात सही है। लेकिन फिर मॉक टेस्ट जो हम लोग जितना देते हैं, बोलते हैं कि लोग कि फिर 200-300 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि मतलब वो रियलिटी में मतलब रियल टेस्ट में बहुत काम आएगा। तो फिर मॉक टेस्ट से कितने रिगार्डिंग है जो मतलब रियल में क्वेश्चन फंस जाते हैं, प्लीज बताइए। आई डोंट थिंक मॉक टेस्ट से ऐसा कुछ भी एक क्वेश्चन था जिससे कि मुझे एक डायरेक्ट वर्बेटिम क्वेश्चन आई गॉट फ्रॉम एनीवेयर. But the thing is कि since I was working and back at home my mother was going through cancer treatment, so I did not have a lot of time, to be very honest. So I had to strategize and be smart about every minute. I had done around 40 to 45 tests for prelims, but I had done very religiously. Like I would have made notes out of the answers, reevaluated them and revised them at least 3 to 4 times for the answers key of those tests. बट उससे हेल्प ये होती है कि आप आंसर करना जान लेते हो, बिकॉज एक्चुअल टेस्ट में या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज में मैक्स ऑन ए गुड डे 35 to 40 क्वेश्चन ही आपको आते हैं, बट 35 to 40 क्वेश्चन करोगे तो होगा नहीं. एंड देन इट्स द थिंग इज कि पीपल हैव टू अटेंड एटलीस्ट, मेरे हिसाब से 85 प्लस 80 to 90 इज एटलीस्ट द रेंज, या फिर उससे भी ज्यादा लोग करते हैं. 80 से कम आई थिंक इज स्टिल रिस्की. तो उसके बाद इट्स एजुकेटेड गेस कैसे आप करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि एलिमिनेशन मेथड्स ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, वो सब चीज भी नहीं, बट बहुत सारी चीजों में यू हैव टू टेक अ गेस, बट थोड़े किसी लॉजिक पे गेस लेना होता है, जो कि आपको टेस्ट सीरीज सिखाती है. तो वो जो प्रैक्टिस होती है आपकी मल्टीपल टेस्ट करने की, वो डर मतलब क्योंकि वो दिन आप कुछ भी टेस्ट कर लो उस दिन डर लगता है बहुत ज्यादा. तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो डर छूटेगा. तो कोई कर सकता है 50 टेस्ट सीरीज, 60-70 भी कर सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम के बाद आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो. हो सकता है आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिख जाए 20 टेस्ट 25 टेस्ट में भी, और किसी को 50 टेस्ट के बाद दिखे. तो ये बहुत इंडिविजुअल होता है कि आप कैसे एमसीक्यूज को टैकल करते हो. तो राइट अमाउंट ऑफ टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से इज अराउंड 40 to 50 स्टिल ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना करना चाहते हो. और फिर बहुत सारे लोग फिर रिकमेंड ये चीज क्या करते हैं कि फिर सीएफई का पेपर करने से कुछ नहीं होगा, जिसके कारण क्या है कि फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप सीएफई, सीएपीएफ, मतलब सीडीएफ, इन सब का भी पेपर सॉल्व कीजिए. फिर वो कितना काम आता है, ये बताइए. वो पेपर एक्चुअली यूज होता है क्योंकि यूपीएससी के जो दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वही एक्चुअल है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अगर बताएंगे, बिकॉज वही सेम मतलब एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन बना रही है, तो आपको पता चलता है कि मतलब यूपीएससी एज एन बॉडी किस एरिया पे ज्यादा हाईलाइट कर रही है, कैसे एरिया पैटर्न पे कैसे ज्यादा फोकस कर रही है। तो उन सब जो लेट्स से फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज जो होता है, कोई जियो साइंटिस्ट की एग्जाम हो गई, सीएपीएफ की एग्जाम हो गई, या फिर सीडीएस की एग्जाम हो गई, वो सब आपको करना चाहिए फॉर श्योर विदाउट अ डाउट। मतलब ऐसे नहीं बहुत रिलीजियस से कर ले, 2 साल का देख लो एटलीस्ट इन सब यूपीएससी एग्जाम्स का, क्योंकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कि किस एरिया पे ज्यादा फोकस कर रही है यूपीएससी। और सर ये पूछना था कि जैसे मतलब सोशियोलॉजी जैसे आपका सर ऑप्शनल था, तो सर सोशियोलॉजी को रिगार्डिंग बताइए सर, उसके रिसोर्सेज के बारे में कुछ बताइए आप। तो सोशियोलॉजी के लिए आई हैड नॉट डन एनी क्लासरूम कोचिंग या ऐसे कुछ, बट देन नेहा भोसले मैम है, एक 3-4 साल पहले ईयर 15 था उनका, तो उनका सोशियोलॉजी का डिजिटल नोट्स है फ्री में, उनके वेबसाइट्स पे मिल जाता है। तो वही मेरा बेस मटेरियल था, जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि इधर कमी है और समझ नहीं आ रहा, तब मैं यूट्यूब या फिर किसी कोचिंग के मटेरियल को रिफर करता था, या फिर एक बुक आती है एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान, तो उससे ही मैंने वैल्यू एडिशन करता था जिन जिन एरिया पे लगता था कि नेहा मैम के नोट्स में वो मिसिंग है। और मैंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ था, 2 टेस्ट सीरीज, एक प्रीलिम से पहले और एक प्रीलिम्स के बाद। सो टेस्ट सीरीज के जो मटेरियल होते थे उससे वैल्यू एडिशन करता था मैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मेंस के लिए कैसे अप्रोच किया और उसकी क्या स्ट्रेटजी थी मेंस प्रिपरेशन के लिए? सो मेंस के लिए द 3 थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इज कि मेंस का कंटेंट, आपकी मेंस नोट मेकिंग और आंसर राइटिंग। सो व्हाट आई हैड ट्राइड कि मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ करूं। तो आई हैड एनरोल्ड इन अ मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें कि वीकली करंट अफेयर्स आते थे, वो पीडीएफ आती थी, और हर वीक हर संडे मुझे हाफ लेंथ टेस्ट देना पड़ता था 1.5 आवर्स का। तो वो जो वीकली पीडीएफ्स आती थी करंट अफेयर्स का, उनको मैं टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज नोट्स बनाता था, हैंड रिटन नोट्स, उसी को बेस करके जहाँ पे लगता था कि और ऐड करना चाहिए तो मैं ऐड करता था स्टैंडर्ड सोर्सेज से, या फिर डिफरेंट वेबसाइट वगैरह, यूट्यूब वगैरह से। तो उनसे क्या होता था कि मेरे जो नोट्स बनते थे वो आंसर फॉर्मेट में बनते थे, कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हो गया पंचायती राज, तो पंचायती राज के बारे में ऐसे नहीं कि मैं नोट्स लिखे जा रहा हूँ, 1-2 पेज में नोट्स बनाता था कि मैं मेंस में लिख सकूं, कि जैसे इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया कि डेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या क्या है, कमिटीज क्या थी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या थी, फिर पंचायती राज क्या क्या है, कौन सा लेवल पे है, क्या इश्यूज है, क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल क्या क्या इनिशिएटिव्स है, यूज केसेस बेस्ट केसेस क्या है, और कंक्लूजन में कुछ ऐसी चीजें, कमेंट्री रिकमेंडेशंस हो गई, वैल्यूएशन मटेरियल। तो मेरी जो मेंस की आंसर राइट नोट होती थी वो आंसर फॉर्मेट में होती थी, ताकि मैं उसी को रिप्रोड्यूस कर सकूं फाइनल आंसर में अगर उसी अराउंड क्वेश्चन आए तो। और सिंस मैं हर संडे टेस्ट दिया था फरवरी से दिसंबर तक 2022, फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक मैंने हर संडे टेस्ट दिया, हाफ लेंथ टेस्ट। तो वो 11 महीने सिंस मैंने टेस्ट दिया, वो टेस्ट ही मेरे लिए आंसर राइटिंग बनता था, और उसी से मेरी टेस्ट स्पीड, एक्यूरेसी और कंटेंट बिल्डअप, वैल्यू एडिशन उसी से हो जाता था ऑर्गेनिकली। सो यही मेरा स्ट्रैटेजी था कि कंटेंट भी ऑर्गेनिकली बनते जाए हर हफ्ते, और हर हफ्ते मैं आंसर राइटिंग और टेस्ट भी दूं, ताकि मैं इंप्रूव करूं बोथ ऑन टाइम एंड कंटेंट लेवल पे। थैंक यू सर। सर ये कहना चाह रहा था कि आपने सीसेट के लिए कैसे मतलब उसको प्रिपेयर किया था, क्योंकि सर सीसेट में क्योंकि जो वेरिएंट टाइप आ रहे हैं तो उसमें डर लग रहा है कि सीसेट एक टफ चीज़ बनती जा रही है, तो सीसेट के लिए क्या ऐसा करें जो मतलब टफनेस को, मतलब जो अंदर डर है बना हुआ उसको दूर कर सके? So CSAT के लिए, like to be honest, I did not do anything, but this is one thing I regret a lot. बहुत ज़्यादा regret है मुझे, क्योंकि जिस दिन लास्ट दिन मैंने CSAT दिया, आते ही मैं घर पे कॉल करके रोया कि मुझे लगा कि नहीं होगा, क्योंकि आई अटेम्प्टेड बहुत कम क्वेश्चंस, क्योंकि बने नहीं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हो गया CSAT, बट अभी मुझे भी उतना ही डर है। मैं ये स्ट्रैटेजी बोलना चाहूँगा कि उस दिन मैंने क्या किया था कि बहुत लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं मेरी तरह, तो उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ मैथ से ही कर लूंगा, मैथ से मेरे 100 मार्क आ जाएंगे। पर उस दिन, और मैं मैथ में स्ट्रांग हूँ मुझे ऐसा लगता था, बट उस दिन सारी ओवर कॉन्फिडेंस निकल गई, और पहले 15 मिनट में ही मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन मैथ्स के कर पाया। फिर मैंने पूरा अपना अटेंशन रीजनिंग और मोस्टली इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे किया।
तो एक तो अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स कर लोगे तो ये मेंटल ब्लॉकेज छोड़िए, आपको ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ इंग्लिश करना पड़े या फिर रीजनिंग इंग्लिश मतलब मैथ को छोड़ के बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़े। और या फिर अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉम्प्रहेंशन से कर लेंगे या फिर कॉम्प्रहेंशन और सिर्फ रीजनिंग से कर लेंगे, वो भी गलत है। क्या पता नेक्स्ट ईयर कॉम्प्रहेंशन ही डिफिकल्ट आए बहुत ज्यादा और मैथ्स इजी आ जाए। तो आपको तीनों सेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या रिसोर्सेस है वो, सिंस मैंने नहीं की थी कुछ भी और ये ओवर कॉन्फिडेंस था तो मैं बोल नहीं सकता, बट अगर आप यू आर इन राइट हैंड्स, आपके यू आर इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ गुड रिप्यूट, तो इफ यू हैव मॉड्यूल्स हियर ऑफ सीसैट और कहीं भी इफ इट्स अ पेड कोर्स और फ्री कोर्स आपके खुद के साधन के हिसाब से, यू कैन सी मेरे हिसाब से जितना जीएस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम एंड रिसोर्सेस, उतना सीसैट भी कीजिए। किसी एक डेडिकेटेड क्लास हो या डेडिकेटेड फ्री चैनल हो, जो भी आप कर सकते हैं डेडिकेटेडली कीजिए, वो मेरा एडवाइस रहेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसा आपने बताया कि आपका पास जो टाइम था वो काफ़ी कम था, मतलब आप बिजी रहते थे, मतलब तो सर जैसे मतलब आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज किया था, थोड़ा सा ब्रॉड वे में बता देंगे। करेक्ट। सो ऑल्सो एक कॉन्टेक्स्ट की मतलब अ लॉट ऑफ पीपल या फिर मुझे भी लगता है कि सिंस इतना सब कुछ एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट बैक एट होम, थिंग्स वर नॉट राइट, तो एक साल में करना बहुत डिफिकल्ट था। और बट वन थिंग हैज हेल्ड इज माय बैकग्राउंड, इवन दो आई कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पीसीएमबी था मेरा, बट मेरे घर पे माय फादर एंड मदर वेर ह्यूमैनिटीज में, दे वेर इन टीचिंग प्रोफेशंस, तो आई हैड ऑल दिस बैकग्राउंड स्कूल टाइम से ही अबाउट इकोनॉमी, पॉलिटी, तो इन सब की चीजों में के बारे में आई वाज ऑलवेज अवेयर। एंड कॉलेज में ऑल्सो यूज्ड टू डिबेटिंग, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, उन सब से मैं फैमिलियर था। पढ़ा नहीं था इन सब लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम को, बट ये कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल से सिंस मेरी बैकग्राउंड रही है, जैसे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, तो जब मैं स्टार्ट किया फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर करना, तब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। इसीलिए टाइम कम होते हुए मेरे लिए इजी हुआ। तो मैं मिसलीड नहीं करना चाहता किसी को कि बहुत इजी था ये करना, बट हो सकता है स्ट्रैटेजी यही थी कि स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी। जैसे मैंने रेंट जो लिया था घर, वो मेरे ऑफिस से वॉकेबल डिस्टेंस पे था, ताकि ट्रैफिक का झंझट ना हो, मैं 5 मिनट 10 मिनट में जाना आना हो सके। फिर मैं ऑफिस जाने से पहले 3 घंटे 3.5 घंटे पढ़ लेता था, ताकि फ्रेश माइंड में फोकस माइंड में पढ़ लूँ, और आने के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ पाता था, तो वैसे करता था। और या फिर लंच ब्रेक पे यूट्यूब कनेक्ट कर लिया, फिर जब मैं चल रहा हूँ या ऑफिस जा रहा हूँ तो यूट्यूब कनेक्ट कर लिया हेडफोन्स पे और कुछ भी कंटेंट सुन लेता था। लंच ब्रेक पे कुछ भी रिवाइज कर देता था, एमसीक्यू सॉल्व कर देता था। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें करके आई यूज्ड टू स्ट्रैटेजाइज कि हाईलाइट कंप्लीट सिलेबस और प्रैक्टिस हो जाए। सर जैसे मतलब मैंने सर मेंटोर्स को अप्रोच किया, तो उनका सर कहना ये होता है कि आपको जो अपना प्लान करना होता है सारा प्रिपरेशन, सर उसी तरीके से सर आपने भी मतलब किस तरीके से प्लान किया था कि मतलब कोर सब्जेक्ट पे किस तरीके से ज़्यादा फोकस रखना है, पीवाईक्यू को एनालाइज करके किस तरीके से ट्रेंड्स को समझना है, सर आप उस वे में थोड़ा बता सकते हैं। करेक्ट। तो जब मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा ये था कि मैं 3 चीजें स्लॉट में डिवाइड करूं। एक स्लॉट में वो वीकली पीडीएफ पढ़ता था करंट अफेयर्स का, जिससे मेरे मेंस नोट्स बनते थे, और एक मैं सोशियोलॉजी के लिए पढ़ता था 2 घंटे, और 2 घंटे में स्टैंडर्ड बुक्स जो थे, कभी लक्ष्मीकांत चल रहा है तो कभी स्पेक्ट्रम चल रहा है तो कभी एनवायरनमेंट के लिए कुछ चल रहा है, तो वो चलते थे। तो जब मैं मेंस का नोट्स बनाता था किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जो कि वो वीकली पीडीएफ से बनती थी, तो मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाने की कोशिश करता था पूरे सारे जीएस की। तो उससे पहले मैं मेंस के पीवाईक्यूज देखता था, या फिर मैं अगर पढ़ भी रहा हूँ थोड़ा लक्ष्मीकांत या फिर एनवायरनमेंट की कोई बुक, तो मैं एक बार ग्लैंस थ्रू करता था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, ताकि मैं उसी हिसाब से पढूं। सबकॉन्शियस माइंड में रुके कि सिर्फ नॉलेज गेन के लिए ना पढूं, मैं इसीलिए पढूं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। वो माइंडसेट से मैंने पूरे 2 साल पढ़ा है कि जो भी मटेरियल मैं पढ़ रहा हूँ, देखो कि उस मटेरियल से कैसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ ताकि मैं आंसर में लिख सकूँ। प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो जो बताते हैं लोग कि आप पीवाईक्यू का ट्रेंड देखो किसमें कैसा आ रहा है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये सब के टाइम नहीं था। तो लास्ट के 2-3 महीनों में मैंने सिर्फ 1990 से 1995 से पीवाईक्यूज क्वेश्चन किए, जहां पे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन के बारे में और नॉलेज चाहिए, ये ऑप्शन, हर ऑप्शन के बारे में थोड़ा ज्यादा जाना, तो वो किए मैंने पीवाईक्यू के साथ। बट ऐसा नहीं कि ट्रेंड देखा कि कौन सा सब्जेक्ट से कैसा आ रहा है वैसे आ रहा है, वो बहुत ज्यादा कंपाइलेशंस मिल भी जाती है, बट उनको मैं ज्यादा फॉलो नहीं कर पाया। बट पीवाईक्यू के साथ बहुत टाइम बिताया मैंने लास्ट के टाइम पे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन का ऑप्शंस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन डिग किया,
जो एक बुक मैंने खरीदी थी 26 इयर्स पास्ट प्रीलिम्स की, तो हाँ, दिशा पब्लिकेशन की। तो उसकी जो आंसर्स होती है उसमें कुछ कुछ गलत होती है बट मोस्टली ठीक होती है, तो उनको फिर मार्क करता था, उससे नोट्स बनाता था, उसको अंडरलाइन करता था, उससे पढ़ता था। तो पीवाई के साथ मैं ऐसा किया, बट प्रीलिम्स के पीवाई क्यूज मैं बहुत एंड में किया, जो कि आई वुड एडवाइस कि आप स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से करेंगे तो बेटर होगा। सर जैसा आपने बताया मतलब कि जो आपके पास टाइम काफ़ी कम रहता था, लेकिन सर आपने ये भी बताया कि सारा जो आपका मतलब मोस्टली जो फोकस रहा है वो ऑनलाइन सोर्सेज पे रहा है जी। तो सर उसमें जैसे ऑनलाइन सोर्सेज में सर मटेरियल तो बहुत मिल जाता है, लेकिन आपने उसको सर थोड़ा बता सकते हैं मतलब रेलिवेंट सोर्सेज किस तरीके से सर आपने उस चीज़ सो एज आई सेड कि करंट अफेयर के लिए? सिंस वो वीकली पीडीएफ जो थी मेरे लिए, वही मेरी मेंस की मेजर कंटेंट बिल्डिंग रहती थी। बट मेरा ये था कि मैं प्रीवियस ईयर टॉपर से कॉपीज देखता था ऑब्वियसली, फिर देखता था कि वैल्यू एडिशन हर कोई कर रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे मेंस के नोट्स वैसे बने थे। तो मेंस पर्सपेक्टिव से बताऊं तो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है उनके कंटेंट और वीकली पीडीएफ्स के कंटेंट मेरे बेस्ड नोट्स बने थे। प्रीलिम्स के मेंस के दौरान जो 3 महीने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के यहाँ कंपाइलेशंस मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और आर्टिकल्स के, कमिटी, बेस्ट केसेस, एग्जाम्पल्स, वो सब बहुत कंपाइलेशंस मिलते हैं उस 3 महीने में। तो उस 3 महीने में उनको लेके मैंने अपने नोट्स में ऐड किया वैल्यू एडिशन के लिए। तो दिस वाज माय मेंस का कंटेंट, मोस्टली टॉपिक वाइज नोट्स बनाना खुद के हैंड रिटन विथ वीकली जो करंट अफेयर्स मैं कर रहा था, प्लस वैल्यू एडिशन फ्रॉम ये सोर्सेस। बट और एक चीज है कि जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ऐसी चीजें जो कि बहुत डायनेमिक है, उनके लिए व्हाट आई हैड डन इज कि मैं अगर 2023 का दे रहा था एग्जाम, तो 2022 2021 के जो सब्जेक्ट्स हैं, तो जो टेस्ट सीरीज है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, मैं 1-2 इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज के आंसर्स से आंसर खुद नोट्स बना लेता था मेंस का भी। मोस्टली ऐसे स्टैटिक सब्जेक्ट हो गया, फिर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट हो गई, तो मैंने 2 साल के पिछले टेस्ट सीरीज भी देखे, क्योंकि उस मेजर जो कंटेंट बनता है ना मेंस में, वो आंसर के फॉर्मेट में बनाना चाहिए। तो वो टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो टू मेक योर नोट्स ऑफ पिछले 2-3 साल। सर essay and so essay के लिए what I had done is कि I had majorly started after prelims, और उसके लिए GS का content you will be the major hero of your essays, but अब तब तक आपका GS थॉरो हो ही जाता है। परंतु ये था कि मैं हर रोज एक टॉपर की कॉपीज पढ़ता था, और जो भी चीज मुझे अच्छा लगता था उस कॉपी से, उसको मैं स्नैपशॉट लेके एवरनोट पे पेस्ट कर देता था। तो बाय द एंड ऑफ 1-2 मंथ्स तो मेरे पास पूरा एक कंपाइलेशन ऑफ गुड चीजें, लाइक गुड एग्जांपल हो गया, गुड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कोई अच्छा पैराग्राफ लिखा है, तो वैसी कंपाइलेशन बन गई थी। दैट आई हैड यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस। प्लस उसके साथ व्हाट आई हैड डन कि एक देयर इज अ वीडियो ऑन YouTube वेयर यू कैन, इफ यू टाइप 50 philosophical essays that you can put, philosophical quotes that you can put in essay, तो उधर इफ यू सी वो बहुत डायनामिक कोट्स है जो कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पे डाल सकते हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, डेमोक्रेसी हो, वुमेन डेवलपमेंट हो, हेल्थ के ऊपर हो, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल कोट्स है। तो उसको मैं डालता था हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग और एंडिंग में, या फिर कनेक्ट करने में, ताकि ऐसा लगे कि ऐसे थोड़ा एकेडमिक लिखा है, थोड़ा फिलोसॉफी में भी फिलोसोफर की आइडिया डाली है, ऐसे नहीं कि रैंडम कोट्स डाले हैं। तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है कि वुड मेक एनहांस द क्वालिटी ऑफ माय एसेज। और उसके साथ आई गिवन टेस्ट सीरीज, आई हैड रिटन 8 to 12 essays and used to get them evaluated. Plus also I used to send them to my friends जो कि are not preparing for UPSC at all, school college friends, ताकि they used to give me fresh perspectives कि उन्हें अगर बोर लग रहा होगा तो they will tell me कि इस पैराग्राफ के बाद से और इंटरेस्ट चला गया। Then they used to give me the raw filtered जो रिव्यू, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स कि कभी कभी द पीपल दैट आर नॉट गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस माइट गिव यू द बेस्ट डिसीजंस। और एथिक्स के लिए व्हाट आई डन कि मैंने DK बालाजी सर की एक बुक आती है, वो मैं एक बार रीडिंग किया था, बट ऐसे ही एक बार रीडिंग किया कुछ दिनों के लिए, बट उसका मैं अंडरस्टूड कि मुझे अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो मैं टॉपिक वाइज एथिक्स के नोट्स बनाता था। आई विल जस्ट एवरी टॉपिक प्लस UPSC करके टाइप कर देता था एंड 3-4 टैब्स खोल देता था एक साथ, और उससे खुद के नोट्स बनाता था। एंड वही नोट्स वही होते थे कि एग्जाम्पल हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, डायमेंशंस हो गया, एग्जाम्पल्स वैसे।
Plus, there are 2-3 Telegram channels. जैसे there's one topper जयंत नहाता, दिव्यांशु निगम और श्रुति शर्मा. इनके नोट्स थे टेलीग्राम पे जो कि उन्होंने पूरा टैबुलर फॉर्मेट पे लिखा था. कोई टॉपिक हो गया तो उसका कोट एक लिखा है, एक पर्सनल एग्जाम्पल, प्रोफेशनल एग्जाम्पल लिखा है. तो उनको वो जो रेडीमेड मटेरियल मिल रहा था उन सब चीजों से आई यूज्ड टू कंपाइल दैट एज वेल. क्योंकि जो चीज अगर मेहनत करके ऑलरेडी किया है तो आप उसको यूज कर सकते हो. देयर इज नो दिस पब्लिकली अवेलेबल, उन्होंने अपलोड ही किया है टू हेल्प यू. सो आई हैव टेकन हेल्प ऑफ दैट. और ऑल्सो थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए व्हाट आई हैव डन इज एक स्कूल ऑफ लाइफ करके आती है यूट्यूब चैनल. उधर हर फिलोसोफर के आइडिया को वो 2-3 मिनट में समझाते हैं. यूजुअली क्या होता है कि एथिक्स में लोग सिर्फ एरिस्टोटल, प्लेटो, ये फेमस फिलोसोफर्स के बारे में ही बात करते हैं, उनको कोट करते हैं. बट वो स्कूल ऑफ लाइफ में अराउंड 20-25 फिलोसोफर्स हैं, तो उनके आइडिया को 2-3 मिनट में अब क्लैरिफाई हो जाएगा. तो उनको मैं कोट करता था ताकि एथिक्स में लगे कि ये थोड़ा मेहनत किया है. ऐसा रूटीन वाला आंसर नहीं लिख के थोड़ा ऐसा लगे कि फिलोसॉफी का बैकग्राउंड है वैसा लगे. तो वैसे मैं चाहता था कि मेरा कैसे एथिक्स थोड़ा आंसर थोड़ा और क्वालिटेटिव लगे. और टॉपर आंसर कॉपीज हमेशा आप रख सकते हो, उनसे बहुत कंटेंट मिलती है, डेफिनेशंस अच्छी मिलती है, रेडीमेड डायग्राम्स मिलती है. तो आप हर रोज अगर इस प्रोसेस में एक टॉपर कॉपी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा बोथ फॉर एसे एंड एथिक्स. Sir, currently I'm a college student and I'll be going in second year in July. So, sir, what should be my approach before UPSC exam? So since I had not prepared during my college, so I'm not sure कि I'll be able to tell or not. But in my limited understanding, I'll tell that कि अभी since you're enrolled here to make sure you go through the classes regularly and उसको एक बार you internalize अच्छे से. But also do not neglect your academics at college and have a good college life will be what I had done and I would advise. But उसके साथ आप न्यूज़पेपर अभी अच्छे से thoroughly पढ़ सकते हो because you have time. So be more generally aware कि आपके चारों ओर क्या जा रहा है and build an opinion on things. तो जब आप actually में full fledgedly prepare करेंगे और एग्जाम से 1 साल पहले, तो आप वो inertia बहुत कम होगी आप में. Thank you, sir. So that's I did not have more than 5-6 hours in a day. So I used to study majorly before coming to office 3 and 3.5 hours. And after office hours, I used to be tired. So 2 hours around I used to study after that. And on weekends, Saturdays, Sundays were off. So that's when I studied a lot. Sir, a typical question that everyone asks, how many hours you read in a day? On weekdays, 5-6 hours, and on weekends, around 10 hours. 10 hours. Sir, how a right time to give up prelims exam? क्या? How a right time to give up prelims exam? I mean, I think the thing should be कि आप पहले decide करो कि आप कब दोगे and और फिर भूल जाओ सब कुछ and then prepare करो. आप अगर जब तक बोलते रहो कि मैं prepare कर लूँगा फिर देता हूँ, वो एक साल फिर डोमिनो इफेक्ट की तरह वो नेक्स्ट ईयर होता जाएगा. आप डिसाइड करो कि मुझे 2025 देना है तो उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. ये नहीं कि प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए आपका कौन सी ईयर दे रहे हो. इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि आप डिसाइड करो, फिर प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ एंड फिर लग जाओ और डू नॉट लुक बैक उसके बाद. Sir, someone says first you prepare for mains, then pre. If you अच्छा वैसे आप बता रहे हो तो Yes, sir. यस. if you तो prepare mains, then पहले मेंस मतलब स्टैंडर्ड बुक्स तो आपको पहले से पढ़नी पड़ेंगे प्रीलिम्स के. जब मेंस के लिए नोट्स भी बना रहे हो तब प्रीलिम्स जो पर्सपेक्टिव से जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो एक बार रीडिंग और 2 बार रिवीजन तो करनी ही चाहिए. बट मेरे हिसाब से अगर मई में हमारे टाइम एग्जाम था तो मिड जनवरी तक आई वाज मेंस ओरिएंटेड. फिर फरवरी से पूरा मैं भूल गया था मेंस ऑप्शनल के बारे में. इट वाज एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स. बट उससे पहले प्रीलिम्स के जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो एक बार पढ़ के 2 बार मैंने रिवाइज किए थे. सो एज आई सेड कि आई वाज एनरोल्ड इन अ प्रोग्राम जहाँ पे हर वीक मुझे हर संडे टेस्ट देना पड़ता था. तो दैट यूज्ड टू बी 10 क्वेश्चंस 1.5 आवर्स हाफ लेंथ टेस्ट. तो मैं पूरे फरवरी से दिसंबर तक 50 टेस्ट दिया होगा हाफ लेंथ टेस्ट. और उसके बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं आफ्टर प्रीलिम्स 16 जीएस के लिए, और प्रीलिम से पहले फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे अराउंड 7-8. बट मैं ऐसे हाफ लेंथ टेस्ट 50 दिए होंगे. तो इफ यू कंसीडर लाइक दैट वुड बी 25 टेस्ट. तो दैट आई हैड डन. उससे मेरे आंसर राइट प्रैक्टिस होते और हर संडे किया मैंने फॉर 11 मंथ्स.
I'll also we're short in time. We'll take maybe last question from this. सर जो आपने प्रिपरेशन में जो करंट अफेयर तैयार किया था, सर आपने बुक्स वगैरह पढ़े थे या फिर मतलब आपने साइट्स का यूज़ किया था, मतलब आपने कैसे उसको वो तैयार किया था? करंट अफेयर्स के लिए सेड कि वो वीकली पीडीएफ आती थी मैगजीन करंट अफेयर्स की, वो मेंस ओरिएंटेड थी, तो वो मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स थोड़ी थी। और प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले मुझे लगा कि नहीं हुआ है ठीक से, तो आई हैड फिर विजन की मैं लास्ट 10 महीनों की मंथली मैगजीन्स मैंने पढ़ी और उसको रिवाइज किया था। सर कोई साइट्स भी होता है मतलब वहाँ पे उन चीज़ों को इकट्ठा करके मतलब वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन? सो दीज मंथली मैगजीन तो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स गिव फ्रीली, आपको फ्रीली मिल सकता है। और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हर रोज भी निकालती है कंपाइलेशन ऑफ न्यूज़पेपर की। आई डिड नॉट हैव टाइम, तो मैं न्यूज़पेपर पहले के 1-2 महीने के बाद मुझसे छूट गया, मैं न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाया। बट आपके पास टाइम है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और वो नहीं बन रहा है तो आप हर रोज आते हैं समरी ऑफ न्यूज़ जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं, दैट यू कैन रेफर। और सर एडिटोरियल के लिए सर? एग्जैक्टली दैट, तो अलॉट आप एडिटोरियल खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो अलॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स पुट यूट्यूब वीडियो ऑफ और डेली एडिटोरियल्स, तो वो आप कर सकते हैं। मैं एडिटोरियल 1-2 महीने पढ़ा, फिर आई कुड नॉट, फिर आई टू स्टार्ट इंटरव्यू के टाइम मैंने पढ़ा था, उसके बाद एडिटोरियल में नहीं पढ़ पाता था। सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए देयर आर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट राइट, बहुत रेगुलरली लिखते हैं वो लोग, तो उनको उनके आर्टिकल सिर में पढ़ता था, ताकि सोशियोलॉजी पेपर 2 जो कि बहुत करंट ओरिएंटेड होता है उसके लिए मैंने पढ़ा था। So I'll just summarize few of the things. I'm really sorry I was in short of time, but first आप अपना रिसोर्स लिस्ट बहुत लिमिटेड एंड प्री डिसाइडेड रखिए। यू कैन डू few additions and minuses after few months and so, बट बहुत ज्यादा मटेरियल्स मिलते हैं। यू हैव टू स्टिक टू वन कि आप क्या करना चाहते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बहुत बम्बार्ड कर देती हैं। ट्राई टू लिमिट देम एज मच एज पॉसिबल, एंड वसी लिमिटेड रिसोर्सेज को आप जितना स्मार्ट तरीके से रिवाइज करेंगे एंड यू रीड इट more and more times, that would also help. And third is importance of test series is extremely high both for prelims and mains, but सिर्फ टेस्ट दे दिया उतना नहीं, टेस्ट को फिर से एनालाइज कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, एंड आप ट्रैक कीजिए आपके इंप्रूवमेंट कैसे हो रहे हैं, क्या कौन से एरिया में वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ है। तो सिट विथ योर टेस्ट एंड एनालाइज देम, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कीप your mental and physical health in check. Have a support system that you can rely on, and because the process gets lonelier every day it gets passed on, and as UPSC ऐसा होता है कि we tend to push away people around us, but एक छोटी सी support group रखिए अपने लिए। It does not have to be people जो कि UPSC ही दे रहे हैं। My support system में there was nobody who was going through UPSC. They were my old school friends and my family, my mother and my sister. So be closer to them and always fall back on them whenever you need some help. So all the very best. I hope you guys do really well and keep your spirits high. It will always feel like you're demotivated and you do not want to continue. But whenever you feel so, understand why did you start at the first place, and you'll get your answer. So thank you everybody. It was wonderful being here. And thank you. सर एक आखिरी मेरा क्वेश्चन पूछना था रिलेटेड टू सर इंटरव्यू, तो सर मतलब मॉक इंटरव्यू फिर वो रियल इंटरव्यू से कैसे डिफरेंट होता है, और फिर आपसे सर दैट में क्या क्या पूछा गया था, और सर दैट के अलावा सर आपसे आप क्या क्या पूछा गया था, बताइए एक शॉर्ट में बताइए। सो मॉक इंटरव्यूज और ये अलग होता है, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज में थोड़ा ग्रिल करते हैं, आंसर सुनते नहीं है पूरे टाइम तक, बट एक्चुअल इंटरव्यूज में पूरा आपको वो सुनते हैं, और कभी आपका ऐसे बीच में नहीं काटता है। और सेकंड ये होता है कि मेरे इंटरव्यू में डैफ हैवी नहीं था, इट वाज मोर जनरल अवेयरनेस। उधर जिस टाइम पे जो करंट अफेयर्स में चल रही थी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल, वो पूछा गया था। बट हाँ, डैफ में मुझे कंप्यूटर साइंस से कुछ पूछा गया था, ओडिशा से पूछा गया था, और मेरी हॉबी पार्लियामेंट्री डिबेटिंग थी, तो पार्लियामेंट के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। I hope it was something that you wanted. Yes, sir. Right. So I think we should congratulate him and be thankful to him for sparing this time for us. And कल rank 15 भी आएंगे, and we will have another chance to have an interaction with this year topper. So I hope this is sufficient, right?
Thank you very much. He is in Thank little you hurry so today, much, sir. so that's why we have to take him. All right, Jeet, thank you. Thank you, everybody.